तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की जो हमने बात की वो यही है कि डेट जीडीपी रेशियो अगर मान लो हाई हो गया या बाकी, दोबारा से वही बात मैं कह रहा हूँ, तो डाटा क्वालिटी की बात भी है और दूसरा पॉइंट भी है। लेकिन जो अभी हमने चर्चा की उसके बाद से मेंस के एग्जामिनेशन में यदि कभी क्वेश्चन आता है, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी हमें फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। कैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रोल है फाइनेंशियल इन्वायरमेंट को दर्शाने में, एंड दैट इज हाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। Okay, Pravesh, when we speak about mass suspension of MPs, and it is, does it signal arrival of an authoritarian state? आप इस बारे में क्रिटिकली क्या बोलना चाहते हैं? Sir, it's a matter of investigation by the parliamentary committee. हम्म। So, पार्लियामेंट इन्वेस्टिगेट करेगी जब जो स्पीकर है उन्होंने सस्पेंड ही कर दिया तो yes, sir. कैसे हो जाएगी वो पार्लियामेंट्री कमेटी? Sir, the speaker is not a authoritarian, seat. Speaker also suspend on the grounds which are written under the Office of Profit and the business of the House rules. So, हम्म। if the MPs are breaching those rules, so the हम्म। speaker or the chairman do has the power to suspend them for a particular period of time or for a time which is हम्म। larger. But if the MPs are finding that is a gross violation of the constitution and the rules, so they have the right to appeal in the High Court or in the Supreme Court. ओके, दे हैव द राइट टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट और सस्पेंशन के लिए। Exactly, sir. Sir, So can parliament be expected to unquestioningly submit to the mass production of legislature by the executive without any application of mind? जो मास मास जो आपका एक्सपल्शन हुआ है, क्या मतलब कि उसको क्वेश्चन करना चाहिए? जो लोग सस्पेंड हुए हैं उनको क्वेश्चन करने का अधिकार है डिसेंटेड एमपीज को? Yes, sir, they do have. ओके। तो आप इससे पॉलिटिकल कल्चर अगर बात करें कि पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट है उसके जो वर्किंग एंड फंक्शनिंग जो उसके नॉर्म्स हैं, उसके जो वर्क कल्चर है, उस पे आप एक दो एलिमेंट बताना चाहेंगे जो होने चाहिए जिससे और ज्यादा इन ऐसे जो है सिचुएशन की जगह कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले हो सके? So, sir, according to Association of Democratic Reforms report, which comes annually, the parliamentary proceedings are not working as it should have worked. The reason because the negative politics is taking place in the discussions, like the removal of the question hour and the time, reducing the time limit by the government. So that shows a signal that the government wants to implement the socio-economic governance schemes fast, but is not allowing and not entertaining the questions uh, as it should have done on the critical note. Okay, Ashik, can you please tell me that no MP should not face suspension without first being heard by an impartial and experienced forum? Would you agree with this or not? no, sir, because the ultimate decision lies with the speaker of the Lok Sabha and chairman of Rajya Sabha, sir. If the due Okay. process is followed, then I think it is a right step, sir. It is Okay. not indicating the arrival of authoritarian state. Okay, Parvesh, Parliament of India has the power to constitute itself. क्या मतलब है इसका? सर, इसका यही मतलब है कि जो पार्लियामेंट की जो मेजोरिटी पार्टी है वही ये डिसाइड करती कि सेशन कब होगा और इस कितना सर, स्टेटमेंट फोकस कितना। कीजिएगा, इसको नोट कीजिए और उस पर सोच के आगे बढ़िएगा। ओके, श्योर सर। Why Indian Parliament is having no provision to alter the composition of the House? Ashik. Sir, I सर, cannot कैन यू। understand the question. Sir, हाँ, क्वेश्चन ये है alter कि the composition of the अब house. बात ये है, जैसे क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में आप कहिए, जैसे अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आपको सस्पेंड कर दिया गया तो आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता जब तक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्टोरेट किसी और को, या जब तक आप उस तरीके से नहीं करते हैं तब तक कोई और नहीं बैठ सकता। मतलब पॉइंट ये है कि हाँ सर। कम्युनिकेशन ऑफ द मासेस विद द पार्लियामेंट, जो मासेस जो जो जनता का जो विचार पहुंचना चाहिए था वो तो नहीं पहुंचा। तो इसीलिए इलेक्टोरेट की बात की जा रही है कि सस्पेंड करके आप इलेक्टोरेट के जो राइट्स है उनका हनन करते हैं। ये एक तरीके से इमोरल है, ये एक तरीके से ड्रैकोनियन प्रैक्टिस है। दैट इज व्हाट ऑनरेबल मनोज झा सर बताना चाह रहे हैं।
और इवन इंडिया में इलेक्टोरेट को कोई पावर ही नहीं है कि अपने एमपी को रिकॉल कर ले। तो वो तो सर इस वजह से नहीं है क्योंकि हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के फंक्शंस होते हैं सर, जिसमें आप डायरेक्ट वापस बुला लेते हैं रेफरेंडम रिकॉल प्लेबिसाइड। तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स होते हैं। और दूसरा सर यहाँ पर जब बोला जा रहा है कि बाय दी रिस्पेक्टेड एमपी मनोज कुमार झा जी, कि इस तरीके से आप पार्लियामेंट को सस्पेंड कर देते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है। सर बिल्कुल पार्लियामेंट के एमपीज को भी ये अधिकार नहीं है कि स्पीकर की चेयर के पास जाके उनके मुंह पे पेपर फाड़ के फेंक दें। नहीं, तो वो दैट तो आपके अधिकार नहीं है जनता को भी कि ऐसे लोगों को चुन के भेजें। वो एक दूसरा डिबेट है। वो आप जब कोर्ट इस बात को नहीं बोल सकता पेपर फेंके या नहीं फेंके, तो आप कौन होते हैं? पार्लियामेंट आप बताना चाहेंगे परवेज जी कि पार्लियामेंट के अंदर कैसा बिहेव होगा, ये परवेज जी बताएंगे? सर मैं नहीं बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है तो वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि पेपर फेंकने से ज्यादा, अगर पेपर फेंकने से अगर आप कोई बहुत बड़ा, अगर आप मिस जो जजमेंट है वो रोक पाते हैं, तो पेपर भी फेंका जाएगा, प्लेकार्ड भी उठाया जाएगा। क्या जनता के विचारों को उठाने के लिए पेपर फेंकना बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो जाता है, औशिक? नो सर। सर वो पेपर अगर सर बट कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर फेंका जाए तो अगन्य अपराध ही है सर। पेपर अगर अगर सर पेपर कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम्म कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को फाड़कर फेंका जा रहा है, और वो भी जब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, अगेन मैं अब आपसे कहना चाहूंगा, अगर पार्लियामेंट के अंदर किस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वी आर सर मॉर्टल्स। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और संसद, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो भी है वो किस एंगल से है, हम अभी उसके उस पर हम बिना उनके विचार जाने नहीं कर सकते। यानी आप कहना चाहते हैं परवेज जी, जब पिछले कुछ समय में एक हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जिस दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिहादी, रुक जा, आतंकवादी, रुक जा, कट, ऐसा करके कुछ कहा गया था, ऐसा हमने सुना, एलिच है ऐसा, तो क्या वो सही था? क्या उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, सर परवेज जी? जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मेंशन अंडर आर्टिकल 105 सर, उसके अंदर प्रोविजन है कि इस तरीके की अगर आप हेट स्पीच दूसरे पार्लियामेंटेरियन के लिए करते हैं तो हम्म आपके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं जान रहा हूँ सर आप किस मुद्दे को मतलब लाइमलाइट में लाना चाहते हैं, तो आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दोज एमपीज, बट यस द सुप्रीम एमपी का नाम कोर्ट। लेके क्या आप कोई जर्नलिस्ट थोड़ी ना हो? मुझे क्या लेना है एमपी के नाम से? मैं आपसे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ बस। तो आप सर एमपी नाम लो, आप उनके गले में माला पहनाओ, हाउ डज इट मैटर विद द एग्जामिनेशन? yes sir, so the implementation of the rules should be done without having biasness for any majority party or for any minority party. That's what I can say. सर हाँ, बोलो बोलो आशिफ। आई विल ऐड ओनली वन पॉइंट कि ऑल थिंग्स आर जस्टिफाइड बट इट शुड हम्म बी विद इन द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग टू द लोकसभा जो प्रोसीजर ऑफ लोकसभा प्रोसीजर है, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स है, उसके प्रोसीडिंग्स है, अकॉर्डिंग और प्रोसीडिंग थी। पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है अपोजिशन एमपीज को सस्पेंड करने का। स्पीकर को अधिकार है कि वो अपोजिशन या रूलिंग इस तरीके से नहीं, जो गलत करे उसको सस्पेंड करे। ये हमारा आंसर होना चाहिए। यस। चलिए आगे। आलमंड, वॉलनट्स, फिश, मिल्क, हेल्थ ड्रिंक्स, जब हम खाने की बात करते हैं तब हम बोलते हैं कि हमारी मेमोरी बढ़ जाएगी। परवेश जी, इस बारे में कोशिश भी, हमने पहले भी बात की है, ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़ाने की भी हमने बात की, ये खाने से ये हो जाएगा और ये खाने से वो हो जाएगा। तो अब बताया गया है कि एप्स जो होते हैं उनके पास लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती है, और वो बहुत सारे फेसेस को डिकेड्स अगो भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। आई थिंक यूपीएससी के लिए बहुत ही अमेजिंग है एप्स के लिए तो और ऊपर से फैमिली, फ्रेंड, डिस्टेंस, एक्विटेंस, उनकी मेमोरी फेल ही नहीं होती है। तो यानी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस जो चिंपांजीज की है और जिसको हम बोनोबोस की बात कर रहे हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि एप्स में हैव द लॉन्गेस्ट नॉन ह्यूमन मेमोरी। इज वंडरफुल न्यूज। वो आप इसका कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव तरीके से आप डाल सकते हैं। डॉल्फिन्स को सुप्रीम कलेक्शन के लिए, रिकलेक्शन के लिए जाना जाता था, और उनकी मेमोरी जो है 20 साल तक मानी गई है। एलिफेंट 12 साल तक रिकॉर्ड रख सकते हैं, और ऑक्टोपस की एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, वो कई महीने तक रख सकता है। परवेश जी, आप कितने समय तक रख सकते हैं? सर वो मैटर टू परवेश को मैटर। याद नहीं आया? परवेश जी भूल गए उसको, कोई बात नहीं। मानसी, आप बताइए। सर कितने समय तक रख सकते हैं सर? जो भी इंसिडेंट्स पास में हुए हैं, आई रिमेम्बर ऑल ऑफ दैट, सो ऑल सबकॉन्शियस ऑफ माइंड में वो चीजें रहती हैं। दैट, सारी चीजें। सर सर जो मेजर हमारे इंसिडेंट्स आई वुड से। मेजर इंसिडेंट्स, ओके, थैंक यू। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर यही दिया है कि भाई आप अ, करुणा, अगर आपको एक मौका दिया जाए, जो पावर ऑफ रिकॉल है, उसका आप क्या यूज करेंगे?
एनीवेज, आई जस्ट वांटेड टू कन्वे कि बात सही है, लेकिन जो पावर ऑफ रिकॉल है, यानी हमें जो रिकॉल करना चाहिए अनप्लेजेंट सिचुएशन से बचने, जब हमारा मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है तो हम अनप्लेजेंट सिचुएशन से फ्यूचर में बच सकते हैं। एंड नंबर टू, हमें जो है हर मोमेंट को रिजॉयस करना चाहिए, वही हमारी मेमोरी को एड करेगा, वही एग्जामिनेशन के लिए भी एड करेगा। कोहिनूर डायमंड फिलहाल कहाँ है? सर, It's in UK. इट्स इन यूके। हम्म, ओके, चलिए। महारानी, यानी अभी तो राजा साहब हैं, उनके पास होना चाहिए। अब एक यहाँ पर फिर से एक मुद्दा आया, वुमेन हु रन। तो वुमेन की बात नहीं हो रही है, वुमेन को अभी हमने बात पहले भी चर्चा की। सेफ पब्लिक स्पेसेस तो चाहिए, इस्टेब्लिश ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चाहिए, कल्चर भी चाहिए, फिर उसके बाद कल्चर तभी बनेगा जो वुमेन को स्ट्रीट्स और पार्क्स में जाकर अपने आप को, वो भी उतने ही हक के साथ, वो भी रनिंग करें या एक्सरसाइज करें या जो भी हो। वुमेन पार्क्स का कॉन्सेप्ट भी है, दिल्ली में भी है, बाकी जगह भी हो सकता है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन है कि इंडियन वुमेन जो कि स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब भी हमने बात की अभी अभी, और प्रवेश जी ने बताया था कि रोटी भी बनाएगी और कपड़े भी धोएगी, और उससे ये भी होना चाहिए, तो बाइकर, रेसलर, एथलीट, क्रिकेटर। लेकिन एक मतलब कि पॉइंट यही है कि इस आर्टिकल में जैसे एक बुक का नाम भी दिया गया, द डे आई बिकेम अ रनर। तो ऐसे एग्जांपल्स आप ले सकते हो एथिक्स के अंदर, ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हो ऐसे के अंदर भी। और आप बता सकते हो कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग अगर मान लो वहां पर भी है, जो कि हमें सेफ इन्वायरमेंट, सेफ कल्चर, सेफ चीजों को क्रिएट करने में हेल्प करती है, तो दैट इज अ गुड शोकेस, गुड फ्यूचर फॉर द इंडियन सोसाइटी। जैसे यहाँ पर पिलुआल कंडी तेक्का परिमल उषा जी की बात की गई है, पीटी उषा। वो अभी हमारे ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से भी वो उसके हेल्प पर हैं। शी वॉज द फर्स्ट इन 1984, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन एंड द फोर्थ इंडियन टू एवर टू क्वालिफाई फॉर एन ओलंपिक एथलीट फाइनल। ये बहुत बड़ी बात है, इंडिविजुअल इवेंट में बहुत ही बड़ी बात है, तो इसको आपको लिखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने ब्रॉन्ज को, 400 मीटर ब्रॉन्ज को 100th ऑफ ए सेकंड से मिस किया था। यानी हमें ब्रॉन्ज बहुत पहले एथलीट्स में मिल जाता, यानी कि हमें नीरज चोपड़ा जी के पहले ही हमें बहुत पहले मिल सकता था, लेकिन ऐसा हो ना पाया। तो यानी एग्जाम्पल्स हैं इस बात के कि कैसे जीवन में आप अगर मेहनत करते हो, आप अगर बहुत कोशिश करते हो, तो आपको सफलता कैसे न कैसे करके मिलेगी ही। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे सौंदरराजन जी का दिया गया है, जिनको सेक्स टेस्ट, यानी कि इट इज अ टेस्ट चेकिंग सेट ऑफ बायोलॉजिकल पैरामीटर्स जो वर्ल्ड एथलीट्स के लिए बनाए गए हैं, कि वुमेन को डिफाइन करने के लिए कितना टेस्टोस्टेरोन या बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं कि वो कैसे है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में, जैसे दूती चंद जी का एग्जाम्पल है। दूती चंद ने गवर्नमेंट और दूती चंद जी ने केस जीता था, जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है स्पोर्ट्स के लिए, लॉज़ैन स्विट्जरलैंड में। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कि आप जब बात करोगे आंसर्स में एथिक्स की, या इनमें से एक नाम भी अगर आपको याद रह जाता है, या आप दो तीन नाम भी एक जगह लिख लेते हैं, जैसे ललिता बब्बर का नाम भी यहाँ दिया गया है, तो इससे पता लगता है कि आप जब वुमेन को लाइमलाइट में रखोगे, बजाय आप एकदम, आपके क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, नेम वन पर्सनैलिटी जिससे आप इंस्पायर हुए। आपके पास मेंस में क्वेश्चन आता है कि आप किस पर्सनैलिटी से कौन से एलिमेंट्स लेंगे, तो इनमें से आप एक ले सकते हैं, उनसे आप कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं। आई एम श्योर इट इज गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स। ऊपर अगर हम देखें साइड में एक और आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है, जो कि हम बात कर रहे हैं, ऑल लीडर्स, अ लीडर फॉर ऑल सीजन, जो वाजपेयी जी के बारे में है। ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे वो, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वो तो प्रोडक्ट थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इंट्रोडक्शन में आप कहीं लिख सकते हैं इसको। सरदार पटेल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। तो जब भी कोई आर्टिकल हम पढ़ते हैं, तो उससे हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को हटाकर हमें जो की वर्ड है बस हमें वो निकालना होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो बहुत ही लंबे समय तक रहे, आउटस्टैंडिंग पॉलिटिशियन थे। वो 1957 में पहली बार पार्लियामेंट में गए, और 33 ईयर ओल्ड जब वो थे, तब से उन्होंने एक आइडिया को, जो कि इंडिया कैसा होना चाहिए और इंडिया कैसे बढ़ सकता है, इसकी उन्होंने बात की। कांग्रेस डोमिनेटेड पॉलिटिकल, जब हम बात करते हैं 1960s के ईरा की, तो फर्स्ट 3 डिकेड्स की जब बात करते हैं, तो वाजपेयी जी उस समय इमर्ज हुए। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की जो एनसीईआरटी है, उसके क्वेश्चंस के साथ हम मैच करके देख सकते हैं। और हम ये भी प्लस पॉइंट ले सकते हैं कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी, जो नेहरूवियन आइडियाज थे, उसके बाद उन्होंने उन चीजों को आगे बढ़ाया, उनको आगे मोड़ा, मोल्ड किया। न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में जो हुए, उससे पहले एक बार हो चुके थे। इसका मतलब है कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना, उसमें पहले के लीडर्स का, पहले के इंडिया का भी उतना ही रोल है। और जो हमारी आज की जो डेवलपमेंट है, उसके अंदर भी हमें देखना पड़ेगा कि पहले 70 सालों का क्या रोल है। सो अरुण जेटली यहाँ पर एग्जाम्पल, उनका भी एग्जाम्पल दिया है। अरुण जेटली जी का भी एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है
कि कैसे उनका भी रोल था। तो पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये नहीं है कि जिनके नाम आपको पता है आपने वो लिख दिए, इससे ज्यादा स्कोर नहीं आएगा। आपको बहुत ही ब्रॉड और क्लियर हेडेड होना पड़ेगा। चलिए आगे। नीचे लिखा हुआ है, अ ड्रीम इज इनकम्प्लीट, अ सॉन्ग इज इनकम्प्लीट, a song is a dream is incomplete, a song is silent, there is a flame that diffused into eternity. Bharat Mata is grieving today. She lost her most beloved prince, a famous departure from the world stage after performing his final act. ऐसा मतलब ट्रिब्यूट की बात की गई है। तो ठीक है, हमें बड़े लोगों से सीखना पड़ेगा। नीचे इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जब हम फार्मिंग की बात करते हैं, फार्मिंग लीडर्स की बात करते हैं, और जो ये सिंक्रोनाइजेशन की हमने पहले भी बात की थी, फार्म लेटिंग डिमांड्स के साथ इकोलॉजिकल इश्यूज की, तो उसके अंदर भी चौधरी चरण सिंह जी का नाम बहुत ही बड़े बड़े शब्दों में लिया जाता है। वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, व्हाट इज द प्रिडिकेमेंट ऑफ रूरल इंडिया, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट ऑल्सो रूरल लिवलीहुड, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आवर फार्मर्स। तो ये हम क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब ऐसा कोई आर्टिकल आता है तो हमें देखना चाहिए कि पॉपुलिस्ट डिमांड्स को नहीं उठाना है, लॉन्ग टर्म देखना है, मार्जिनल लैंडलेस और स्मॉल फार्मर्स की बात करनी है। उसके बाद हमें देखना है कि कैसे वो एग्रीकल्चर को कंसोलिडेट कर सकते हैं, कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आगे बढ़ सकता है। वेरिड एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो हैं, जिनकी हमने बात पहले भी की है, जैसे आज तो हमने एग्रीकल्चर डे, फार्मर डे के कारण ये हम बात कर रहे हैं, तो लेकिन वहाँ हमने महाराष्ट्र की बात की, हमने राजस्थान की बात की, हमने हरियाणा पंजाब की बात की, हमने बात की कि कैसे चीजों को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। तो उस तरीके से आप भी यहाँ से कीवर्ड ले सकते हैं, और उस कीवर्ड, कुछ कीवर्ड लेने के बाद आप उनको पीछे वाले उससे हल्का सा लिंक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे। सर हम्म। एक और इसमें की वर्ड है कि वी हैव फोकस मोर ऑन इंडस्ट्रियल केमिकल कैपिटल। हम्म। हाँ सर, वी हैव फोकस मोर ऑन इंडस्ट्रियल कैपिटल कैप मॉडल, इट हैज रिजल्टेड इन सेवरल इकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो यूज हुआ है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, उससे इम्पैक्ट भी हुआ चलिए है सोशल ठीक है, इकोनॉमिक। चलिए। इमरान खान ग्रांटेड बेल इन साइफर केस बट रिलीज इज अनसर्टेन। तो यानी कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रहे हैं, जस्ट यू कीप एन आई, तो आप उसको देखेंगे। सिंगापुर फर्म प्रोब्स रेसिस्ट रिमार्क ऑन इंडियन। तो अब यानी हालत सिंगापुर तक पहुंच गई है। पहले हमें ऐसा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस से तो मिलता था, लेकिन अब हमें सिंगापुर से भी सुनने को मिलने लगा है, जहां ड्राइवर ने कहा गो बैक इंडिया। सो यानी कि हैविंग वो लिव्ड एंड वर्क इन सिंगापुर फॉर 10 years, द पैसेंजर डिस्क्राइब द इंसिडेंट ब्लैटेंट रेसिज्म। तो यानी ये बोलने से नहीं रोका जाएगा, लॉ इसको नहीं रोक पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो वही हमने जो पहले भी बात की, हमने क्वेश्चन अभी एक हमने किया था जिसके अंदर हमने ग्लोबलाइजेशन की बात की थी कि ग्लोबलाइजेशन क्या रिट्रीव में चला गया है, क्या आपका कंजर्वेटिव आइडियाज बढ़ गए हैं, क्या आपका जो प्रोटेक्शनिज्म है वो बढ़ गया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड के जो सिनेरियो है, जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, या जैसा अभी हमने प्रवेश से जो आइडियाज भी दिए थे, तो हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से जनरल स्टडीज के पेपर 3 में भी, और इनफैक्ट अगर हम पीएसआईआर की बात भी करें तो वहां हम कुछ एलिमेंट्स को देख सकते हैं। 300-year-old wreck is believed to be hold 11 million gold and silver coins, other precious cargo from Spanish colonies। तो यानी कि ये शिपरेक्स हैं। अब ये शिपरेक्स जो है कोलंबियन गवर्नमेंट कोशिश करेगी उनको उठाने की, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कौन इनका हकदार है। अगर इसमें इतना सोना भी है, 11 मिलियन गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स अगर हैं भी, तो वो एमरेल्ड्स भी हैं, वो स्पेनिश कंट्रोल कॉलोनी से जब लेके जाया जा रहा था, तो बिलियन ऑफ डॉलर्स जो ये है, तो ये आखिर किसका होना चाहिए। ये एक कॉलोनियलिज्म का नेगेटिव एग्जाम्पल है। और रिसर्चर्स को ब्रॉन्ज कैनन्स भी मिले हैं गुड कंडीशन में। तो यानी कि हमें ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो डेवलप वर्ल्ड है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आज भी हम पे कर रहे हैं। यूनेस्को के एक्सपर्ट्स ने जो अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज है, वो कोलंबियन गवर्नमेंट को उन्होंने लेटर भी लिखा कि आप उस ट्रेजर को सेल नहीं कर सकते, बल्कि वो हिस्टोरिकल वैल्यू का है और सिग्निफिकेंट हेरिटेज लॉस भी हो जाएगी। कोलंबिया ने साइन नहीं किया यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, उसको कोई, इसलिए इट इज नॉट सब्जेक्ट टू इट। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह के आइडियाज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, और जो पहले जो एक्टिविटीज हुई हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे फ्यूचर में होते हैं। चलिए आगे।
MPC. Parvesh, what is MPC? Monetary Policy Committee. Okay. Can you tell me about its members? Sir, it is having 6 members, headed by the RBI governor, and the composition of it: 2 are the government directors and 4 are the RBI directors, along with the RBI governor. Within this, I would like to correct here that MPC has 6 members, 3 are appointed by the government and 3 are from the RBI. Thank you for the correction. चलिए आगे. Million of PCs may turn trash when Microsoft ends Windows 10 support by October 2025. क्या कहना है इसका आपके बारे में? आशिक, what do you say? इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि विंडो 10 सपोर्ट दिया जाता है बाय द कंपनीज. इट देयर इज अ मोनोपोली इन द सॉफ्टवेयर बाय द विंडोज, वैसे ही मैक ओएस का भी है. तो थर्ड पार्टी का एंट्री होना जरूरी है सर, तभी जाके जो 3R का जो इकोनॉमी लॉन्ग टर्म के लिए हाँ कि जी. आपको Sir, I कंपनी would को फेंकना नहीं पड़ेगा, आप रीयूज कर सकते हैं. सर आई तो वुड से यहाँ पे वन जो फ्रेज है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के डिस्पोजल के लिए एंड फॉर अपसाइक्लिंग. और अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से बैटरीज में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, आंचल? ओके, दिव्या? कोबाल्ट, लिथियम. Nickel and copper also, and these materials can be used in the electric vehicle motors also. या रिन्यूएबल पावर जनरेशन में भी हो सकता है. टर्निंग एंड ऑफ लाइफ कंप्यूटर्स, ये एक अच्छा फ्रेज है, जो कि उनको मैग्नेट्स की तरह आप सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी जैसे ईवीज या विंड टर्बाइंस की बात करें, वो भी हो सकता है. सो आई बिलीव दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. कम ऑन, मूव फर्दर. ऑटो PLI 2.0, यानी कि जो फेम थी, यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये स्कीम बंद हो जाएगी. इसकी जगह ऑटो PLI 2.0 आ जाएगी, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आएगी, जो बाकी जगह के लिए भी है. फेम 2 में हमने जैसा पढ़ा भी है पहले कि उसके साथ कुछ कंपनीज ने उसको ठीक से फॉलो नहीं किया, उसके पैसे सब्सिडीज को दिया भी नहीं, और जो गवर्नमेंट का मानना है कि वी वांट टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, वी वांट टू मेक इट मोर सस्टेनेबल, दैट इज व्हाई इट विल बी हैपनिंग. चलिए आगे. रेड सी टेंशन. औशिक, व्हाट इज रेड सी टेंशन? नियर बाय येमेन में ह्यूथी रेबल्स था. दे वाज टारगेटिंग द मर्चेंट फ्लीट इन द रेड सी. वही टेंशन है, उसके बारे में बात हो रही है. ओके, चलिए आगे. लुकिंग फॉर भगत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न इंडिया. क्वेश्चन हर साल, हर 2 साल में आता है. तो भगत सिंह जो है, क्या ऐसे मिल जाएंगे? भगत सिंह का स्टैचू देखिए, लॉन्स के ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के लॉन में है. हवेली है, खटकर कलां, ये विलेज है. भगत सिंह का ग्रेट ग्रैंडफादर उन्होंने बनाया था. अभी आई थिंक इट मस्ट बी, अभी तो इसको वो होना चाहिए, क्या कहते हैं अपना, एक म्यूजियम या फिर सीक्रेट प्लेस की तरह. बहुत ही अच्छा आर्टिकल है. क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. राम सुतार जी बहुत ही फेमस एक स्कल्पचर थे, उन्होंने बनाया, और पहला एग्जाम्पल भी दिया गया है. सुभाष चंद्र बोस जो है फ्रंट में, और इंदिरा गांधी, सॉरी, आप कह सकते हैं कि जो 23 एज ग्रुप में जब ये नहीं रहे थे, इंदिरा गांधी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. तो ये पॉइंट ये है कि भगत सिंह जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो था और रहेगा भी. तो ऑन April 8, 1929, एग्जैक्टली आपको डेट पता होनी चाहिए. बटुकेश्वर दत्त साथ में भगत सिंह दोनों ने जो है आवाज उठाई, लो इंटेंसिटी बम फेंके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जो आज की लोकसभा है, या आप कह लीजिए लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उन्होंने आवाज उठाई थी लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म. और उन्होंने पैम्पलेट्स भी फेंके, और उन्होंने फ्रेंच एनार्किस्ट ऑगस्ट वैलेंट को भी कोट किया, इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर. तो अभी जैसा कुछ हुआ, जैसा कि इसमें बाद में बताया भी गया पार्लियामेंट से, तो क्या आप कह सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा? मतलब ऐसा कुछ उनके विचारों को ये क्या दर्शाते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट और इसकी बात की, ये भी समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि वो लोगों को ऐसा करने को मजबूर होना पड़ा. और आप ये भी कह सकते हैं कि भगत सिंह जी तो बहुत कम समय पॉलिटिकली एक्टिव रहे, लेकिन उनका इतना लंबा, इतना जबरदस्त उनका ऑरा, और उनकी इतनी उनकी कॉन्फिडेंट और इतनी जो बातें थी, जिससे भारत का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप प्रभावित हुआ, लेफ्ट हो चाहे राइट हो,
और इवन चाहे फिर वो आज फार्मर एमएसपी मांगते हो, चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ हो, सभी जो है उन्हीं की करेज और देश प्रेम की बात करते हैं, उन्हीं की जो है आप कहना चाहिए कमिटमेंट की, और उन्हीं के जो सेक्रीफाइस है उसकी बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय उनके मेंटोर थे। और 1926 का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। नौजवान भारत सभा जो 1926 में बनी, एचआरए उससे पहले बना था। उनकी आइडियोलॉजी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर थी। रशियन और आयरलैंड जो रिवोल्यूशनरी और जो सोशलिस्ट मूवमेंट थी उससे भी इंस्पायर थी। 19 दिसंबर 1928 वन भगत सिंह राजगुरु दोनों ने जो है पुलिस ऑफिसर जेम्स स्कॉट, जबकि सैंड्रोस को मारना था लेकिन जेम्स स्कॉट को मारा क्योंकि वो हो गया था, वो ही मिले थे। वो मतलब इन द सेंस आइडेंटिफिकेशन तो मैं नहीं कहूंगा गलती से, लेकिन उनको ड्यूटी पे होना चाहिए था लेकिन उनकी जगह उनको मारा गया। एचएसआरए को भी आगे लाइमलाइट में लेके आने वाले भगत सिंह ही थे। इन विदाउट फियर द लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह, जिसमें कुलदीप नायर जी ने लिखा। कुलदीप नायर एक बहुत इंपॉर्टेंट भारत के जर्नलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। और उन्होंने ये बताया कि कैसे सिंह और दत्त ने रेकी की थी असेंबली की 2 दिन पहले, और दे वांटेड टू इंश्योर कि बॉम्ब जो है किसी को हर्ट ना करे। और उन्होंने स्लोगन भी बोला, अंदर भी चले गए। इंडियन मेंबर ऑफ द असेंबली ने उनको पास दिए थे और वो गायब हो गए। तो इस तरीके से अभी के जब आप देखते हैं बात को, विठल भाई पटेल जो है वो उस टाइम प्रेसिडेंट थे असेंबली के, उन्होंने रूलिंग दी। और उन्होंने ये भी कहा था कि बात ये हो रही थी कि भाई हाउस प्रोसीड करे जो पब्लिक सेफ्टी बिल है, जो कि एंटी नेशनलिज्म एंटी पीपल बिल था। और वो जो ऐसा लेजिस्लेशन था जो एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए था सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट की। तो इसी दौरान सिंह और दत्त साहब ने बॉम्ब फेंका। तो सॉन्ड्रेस केस से भी लिंक किया गया, ट्रायल पे भी किया गया। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को कहा जाता है। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दे दी गई। लेकिन जो हैंडरिटन लेटर्स सिंह साहब ने लिखे, जैसा कि यहाँ लिखा गया, उन्होंने कहा भी कि भाई मैं अपने लिए वो नहीं मांगूंगा कि भाई मुझे छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी कुर्बानियां हैं जो आज तक के हमारे शहीदों ने दी हैं, मैं उसको वेस्ट नहीं जाने दे सकता। सो ही वॉज एन अमेजिंग एंड अ वेरी पावरफुल एंड ए ग्रेट जेंटलमैन, जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। वाई आई एम एन एथिस्ट, एक उन्होंने पैम्पलेट भी एक ऐसे लिखा कि कैसे उन्होंने बताया कि धर्म क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, बिलीफ क्या होता है। और उन्होंने किसी एक एक धर्म, एक पार्टी, एक नेता, किसी की ऐसी चर्चा नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि जो भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी थी वो जनता के लिए थी। उन्होंने कैपिटलिज्म के, एक्सप्लोटेटिव कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बात की, प्रो फार्मर बात की, प्रो प्रो मार्जिनल एंड लैंडलेस फार्मर्स की बात की। उन्होंने पंचायती राज सिस्टम को डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक्सप्लोटेशन खत्म होना चाहिए। तो उनकी बातों को जो है अलग अलग ऑथर जैसे कुलदीप नायर साहब उन्होंने लिखा। अब ये भगत सिंह रीडर, ये एक किताब है जिसके अंदर उनकी राइटिंग्स हैं, और उन्होंने जो भी लिखा पढ़ा, जैसे नौजवान भारत सभा, और जो बात की उनकी बातें थी, क्योंकि उन्हें संस्कृत भी आती थी, बांग्ला भी आती थी, और वो जेल में पर्शियन भी सीख रहे थे। तो इस तरीके से आप देखिए कितने मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी थे। उनकी इन बातों को कोई जान ही नहीं पाता। और वो जब 20 और 21 साल के, यानी आपकी एज ग्रुप से भी छोटे थे, यानी इतनी महान उनकी सोच कई जगह है। और उस तरीके से करेज के साथ उन्होंने काम किया। प्रोफेसर इरफान हबीब भी कहते हैं कि टू मेक द डेफ हियर, ये भी अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही बड़ा एंटी इंपीरियलिस्टिक साइन था। तो यानी कह सकते हैं कि पोस्टर हो, चाहे कॉमिक हो, चाहे सोशल मीडिया फैन क्लब हो, चाहे बॉलीवुड फिल्म्स हो, सब जगह सिंह जो है, भगत सिंह जी, वो पॉपुलर कल्चर का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसका मतलब लोग उनके साथ रेजोनेट करते हैं। और आप कह सकते हैं कि भगत सिंह जी आज भी इंस्पायर करते हैं। जैसे कि एक और किताब का यहाँ पे एग्जांपल है, रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ इंटरवॉर इंडिया। उसके अंदर भी बताया कि कैसे भगत सिंह जो है जयदेव कपूर के साथ उनका जो रिलेशन था, और उन्होंने उनको भी सपोर्ट किया। इवन जब हम भगत सिंह जी की उधम सिंह जी की बात करते हैं, तब भी हम बात करते हैं, उसमें भी भगत सिंह जी का रोल था। तो यानी कि ये यहाँ तो थोड़ी और बातें भी की गई हैं, जैसे ओल्ड कश्मीरी गेट पे उनके फोटोग्राफ की बात की गई है, और कैसे ये सब चीजें थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो भगत सिंह जी थे वो रियली में एक तरीके के रियल इंडियन आइडियाज को रिफ्लेक्ट करते थे। इसीलिए आज भी आम आदमी बिना उनके आइडियोलॉजी के पढ़े भगत सिंह के नाम से ही सिर्फ वो जो अपने आप में मोटिवेट हो जाता है, और वो चाहता है कि वो अपने सपनों को पूरा करे। सो हाउ इंडिया चूजेज रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट, तो इसमें आई थिंक ऐसा वो नहीं है, प्रोसेस है। वो प्रोसेस आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ जुड़ा होगा, प्रोटोकॉल बेस्ड होता है, क्योंकि हाईएस्ट ऑनर देना पड़ता है जो भी आते हैं। सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर भी होता है,
रिसेप्शन भी होता है। तो एक तरीके से ये एक सेरेमोनियल एक्सरसाइज है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपब्लिक डे हमारे लिए नेशनल पर्व है। तो आप कह सकते हैं 6 महीने पहले स्टैंड बाई प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, रियल प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कंसिडरेशन रखे जाते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है, इंडिया और उस कंट्री के बीच में रिलेशनशिप को देखा जाता है। और ये अल्टीमेट साइन है फ्रेंडशिप का, पॉलिटिकल, कमर्शियल, मिलिट्री, हर तरीके का सिंबोलिज्म है, पावरफुल टूल है। और अब तो नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस भी हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो ऑप्शन को जीरो इन करती हैं, और प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी की उसमें इजाजत ली जाती है। उसके बाद फिर जो है इंडियन एम्बेसडर जो उस कंट्री के, वो देखते हैं कि अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे पूरा एक दिया गया है, कैंडिडेट फाइनलाइज हो जाता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो जाते हैं। जैसे कि कहा क्या गलत हो सकता है, जैसे कि अभी यूएस के केस में हुआ, नहीं हो पाए। और ऐसा भी उन्होंने एक एग्जांपल बताया कि भाई जो एक इंसिडेंट उन्होंने बताया जहाँ पे एक दी कैंप ऑफ द चीफ गेस्ट अटेम्प्टेड टू अकम्पनी द गेस्ट फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ओनली कमांडर ऑफ द ट्राई सर्विसेज गार्ड वो सिर्फ विजिटर के साथ चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। तो एडीसी को जो है फिजिकली रिस्ट्रेन करना पड़ा। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी कैजुअल बट इन काइंड ऑफ वेरी इंस्पायरिंग थिंग, वंस बीइंग पार्ट ऑफ द सर्विसेज। तो आप इन चीजों को बहुत नजदीक से देख सकते हैं। क्रेडिट रेटिंग्स में गवर्नमेंट का व्यू जो हमने पीछे भी चर्चा की, तो आप वेरिएबल्स को देख सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कैपेसिटी, फाइनेंशियल सेक्टर रिस्क, उसके बाद एक्सटर्नल फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटर्नल डेट सस्टेनेबिलिटी, जो ये की पॉइंट्स हैं, इनसे कैसे जुड़ा हुआ है। तो फिच का जो सॉवरेन रेटिंग मॉडल है, क्वालिटेटिव ओवरले है। इसको मानसी भी जो हमारी इकोनॉमिक सीरीज का जो पार्ट है और जो डॉक है उससे जोड़ के देंगे, लेकिन पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट का हमें आवश्यकता नहीं है, वी हैव टू सी। मॉडर्न पासपोर्ट कैसे इवॉल्व हुआ, ये एस्से के अंदर आप कभी कोई बात बताना चाहें, कभी कोई मॉडर्न टूल बताना चाहें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर अगेन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, डंकी मूवी से जुड़ा हुआ है। हिब्रू में जो बाइबल जो लिखी गई है, बुक ऑफ नेम है, वो कहते हैं कि एंशियंट पर्शियन किंग उस समय भी सेंट ए प्रॉफिट टू जेरूसलम विद लेटर्स रिक्वेस्टिंग अदर गवर्नर्स टू ग्रांट हिम ए सेफ पैसेज थ्रू इस कंट्री। तो ऐसा करके एग्जांपल बताया गया है। मॉडर्न पासपोर्ट का ओरिजिन जो है 1914 से जोड़ा गया है। और इंडिया में भी इस तरीके की बात है। ऐसे तो हमारे एंशियंट इंडिया में हमारे यहाँ जो सील मिलती है उसकी बात भी की जानी चाहिए। वो भी अपने आप में किसी पासपोर्ट से कम नहीं थी, क्योंकि अगर वो यूनिक थी तो वो भी पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड की तरह हो सकती हैं। चलिए, वाई व्हाइट हाउस इज अपोजिंग जापान फॉर्म बिड टू एक्वायर यूएस स्टील मेकर। तो ये भी एक एग्जांपल है कि कैसे जो डेवलप्ड या ग्लोबलाइज्ड कंट्रीज या फिर वर्ल्ड का नंबर वन कंट्री भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो दिस इज हाउ everywhere it happens, employment is everywhere important, and निप्पॉन स्टील का ये एक एग्जांपल है। और निप्पॉन स्टील जो है वर्ल्ड, इंडिया, जापान का मुझे कहना चाहिए लार्जेस्ट स्टील मेकर है, और यूएस के एक फंडामेंटली इकोनॉमिक के सपोर्टर हैं, उसका पार्ट है, शेयर्ड वैल्यूज इंटरेस्ट हैं। तो दैट इज व्हाई दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट। हमें इंडिया का सोचना चाहिए कि उसका कैसे है। चलिए चलिए, डंकी की हमने बात की, वेरी गुड। चलिए 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 चलिए। So IPL reflects both economics and also both emotions. That is also true. With respect, money is very important. चलिए, वुमेन रेसलर्स स्केयर्ड, ये भी अपने आप में आप पहले बात कर चुके हैं। चलिए, So we're done with this newspaper. Now we can take up Financial Express. okay, please continue with that. So we talked about this PLI 2.0 and FAME. Optional T plus O trade. What do we mean by this T plus zero trade? ये सेटलमेंट है। आप जो भी ट्रेड करते हो T+0 मतलब उसी दिन हो जाएगा। T+ हाँ मतलब अगले दिन। हाँ, T टी प्लस मीन्स टू नहीं, टी मीन्स ट्रेडिंग डेट, जिस दिन आप ट्रेड करते हो, और जीरो हाँ। मतलब उसी दिन सेटल हो जाएगा। So NFRA flags audit lapses by Big Four, तो important National Financial Reporting Agency Authority. So Big Four companies कौन कौन सी हैं, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। Inspections were carried out by Deloitte, ये चार मेजर कंपनीज की हम बात कर सकते हैं। Carried out by Deloitte, Haskins and Sells, BSR and Co, SRBC and Co, PricewaterhouseCoopers, Chartered Accountants.
So financial regulation के perspective से this is important, auditing and accountability. ये आज हम बात कर चुके हैं गिफ्ट सिटी, दे हैव लिफ्टेड द बैन ऑन लिकर सो दैट गिफ्ट सिटी में और फाइनेंशियल कंपनीज आए और ज्यादा एफडीआई आए, एंड इसके अलावा इवन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भी लाइसेंस्ड तरीके से गुजरात अलाउ करता है कि लिकर अवेलेबल होगा ओनली टू द टूरिस्ट। तो इसमें दिखाते हैं एथिकल पर्सपेक्टिव से कि प्रैग्मेटिज्म वर्सेस कि आपका क्या आइडियोलॉजी है, गांधीयन आइडियोलॉजी, एंटी लिकर और उस पर हाँ, यहाँ पे हमने ये बात करी थी कि नेशनल। एक्सट्रीम मेजर्स या तो आप कंप्लीटली बैन कर दोगे तो पैरेलल इकोनॉमी के थ्रू वो अवेलेबल होगी, जैसे स्टेट ऑफ बिहार में वो होती है, तो स्मगलिंग होगी, ब्लैक इकोनॉमी में फंक्शन होगा। या हम हूंच ट्रेजेडीज की भी बात करते हैं जिसमें इसी की मिथाइल अल्कोहल मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से भी मतलब वी सी द पीपल डाइंग ऑल्सो। सो लोकल चैट जीपीटी लाइक लैंग्वेज मॉडल्स की बात हो रही है, जो इंडियन चैट जीपीटी मॉडल भी बोला जा रहा है जिसको, सो इट हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तो दिव्या, कैन यू टेल मी, लोकल चैट जीपीटी लैंग्वेज मॉडल होंगे तो वो, अगर मैं बात करूं मान लो तेलंगाना या उड़ीसा स्टेट की, तो उसके ग्रास रूट लेवल पे क्या हेल्प कर सकता है? एक हेल्प बताओ। सर जैसे स्किल्स की बात होती है और 6 to 8 क्लास से ही कंप्यूटर लैंग्वेज को या फिर उन चीजों को इन्वॉल्व करने की बात की जा सकती है, तो स्टूडेंट्स में वहीं से स्टार्ट किया जा सकता है कि किस तरह से उन्हें स्किल्स के साथ जोड़ा जाए, एआई मॉडल्स के साथ जोड़ा जाए। जैसे नए कोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं क्योंकि उनके रिगार्डिंग जॉब क्रिएशन के अकॉर्डिंग या फिर उनकी जो टेक्निकल में जो स्किल्स चाहिए उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, प्लीज मूव ऑन। ओके, गोइंग एक डेटा दो कि इंडिया में 10 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, व्हाट वी कैन से 10 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सेल्स की बात हो रही है सर, एक साल में इतने हम सेल कर पाएंगे। अच्छा है, तो आपको बस इतना याद रखना है, इतना समझना है, 50 दैट रेस्ट मिलियन यू कैन जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी विद बाय 2030। वाहन जस्ट डेटा। कीप अ ब्रॉड आइडिया। हाँ जी। और द अभी गवर्नमेंट वो ड्यूटी बढ़ा के रखेगा, और वो एडिबल ईयर्स को गवर्नमेंट एक्सटेंड इंपोर्ट ड्यूटी कट फॉर एडिबल ऑयल्स बाय ईयर, तो इससे क्या होगा मानसी, से क्या होगा? गवर्नमेंट जब इंपोर्ट ड्यूटी कट बढ़ा के रखेगी तो उससे होगा क्या? सर उससे ये होगा, जो हम एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट कर रहे हैं उनके प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे, प्राइस कट में होगा। इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन में हमें उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड इन्फ्लेशन। और और एक उसका सर नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो उसको हैम्पर कर सकता है। जैसे हम बात करते हैं कि सेल्फ रिलायंस इन ऑयल सीड्स एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में, तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी कट रहेंगी, हम इंपोर्ट डिपेंडेंट ही रहेंगे, प्राइसेस भी सस्ते रहेंगे जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो वहां पे उस मतलब, साइकिल को हैम्पर कर। लेकिन जो हमारा खुद का प्रोडक्शन है, क्या उसको रियली में हेल्प मिलेगी? नहीं मिलेगी सर, मैं वही पॉइंट बोल रही हूँ कि खुद के प्रोडक्शन को, डोमेस्टिक सेक्टर को हैम्पर होगा प्रोडक्शन में जब हम सेल्फ रिलायंस की बात कर। कौन कौन सा एडिबल ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है? सर पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया, 65% इम्पोर्ट डिपेंडेंस है उसमें। ओके। कौशिक, सनफ्लावर ऑयल एंड कौन से सोयाबीन। महीने में और कौन कौन सी होती हैं? की रबी क्रॉप्स के कि- नाम बताइए। किसमें से रबी एमएसपी? क्रॉप, रबी क्रॉप्स के नाम। सर अभी क्रॉप में मस्टर्ड हो गया, फिर वीट, हम्म, रैपसीड, हाँ, पल्सेस। उसके